Hello students, today I am going to take up the poem from standard 9. Poem number 1, The Road Not Taken. This poem is written by Robert Frost. In this poem, the road not taken, the road symbolizes our life. The poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. He describes his feelings about the choice that he had left in the past. The path which we have chosen decides our future and our destination. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary experiences. Let's start. The first stanza. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveller. Long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So what does this mean? This means that the poet एक बार वो रोड पर चल रहा था और he was walking around along a road और वहाँ पर क्या हुआ, एक डाइवर्जन आया. डाइवर्जन मीन्स दो पाथ्स उसको दिखाई पड़े, as you can see in the picture, and he had to choose one of them. Now the poet says here that he could not travel on both the roads, he could travel only on one road. और as the line say, a yellow wood, येलो वुड का मतलब क्या है? अब ये सीज़न है ऑटम का, इसलिए सारी लीव्स येलो हो गई हैं और वो धीरे धीरे गिर रही हैं, इसलिए वो पूरा फॉरेस्ट येलो दिख रहा है. देखो पिक्चर में. इट रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ पीपल, वे पीपल हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स. दे रिप्रेजेंट पीपल हु आर ओल्डर देन द पोएट. द पोएट kept standing there and looked at the path very carefully as far as he could see it. तो वो पाथ लेने से पहले पोएट को ये जानना ज़रूरी था कि ये पाथ उसके लिए सूटेबल है या नहीं. वो पाथ उसको बाहर से दिख रहा था, दूर तक दिखाई पड़ रहा था, फिर एक जगह से उसको दिखाई पड़ना बंद हो रहा था वो पाथ, क्योंकि वो सारा पाथ जो है वो ट्रीज़ और बुशेस से कवर्ड हो चुका था. सो ऐसे ही हमारी लाइफ में व्हाट हैपन्स व्हेन वी मेक चॉइसेस or when we have choices, we have alternatives, but we have to choose only one out of them. We take time to think about the pros and cons, whether it is suitable for us or not, and only then we take a decision on what path we should choose. Okay, so now let's come to stanza 2. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. तो क्या कहते हैं पोएट यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में? द पोएट kept on looking at one path for a long time to check if it was the right path for him or not, and फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं दूसरे पाथ पे चलूँगा, क्योंकि उसको लगा दोनों पाथ माने जो रोड्स थे एक्चुअली, वो दोनों पाथ्स उसको सही लगे. फिर भी उसको लगा कि मुझे दूसरा पाथ लेना चाहिए और उस पर वो चलने लगे. He adds that maybe he felt that the path was better for him, so he chooses it as it had grass on it, which means that it was unused. Not many people had walked on this path earlier. That is why the path was grassy and wanted wear. इसका मतलब क्या है? It means that many people had not walked over that path. And he walked on the path for some distance, and इसने क्या रियलाइज़ किया? दोनों पाथ देख रहा था वो और एक पाथ पर चल रहा था, तो उसने देखा कि ये दोनों पाथ्स बहुत दूर तक, तो दोनों पाथ्स कोई ना कोई उन दोनों पाथों पे चल चुका था और काफ़ी दोनों सिमिलर भी थे और वॉर्न आउट भी थे. वॉर्न आउट माने काफ़ी लोग चल चुके थे उस पाथ पर. ऐसे ही हमारे लाइफ में भी हम लोग को जब कोई ऑप्शन लेना होता है, कोई रोड पकड़नी होती है, कोई पाथ लेनी होती है, मीन्स हमारे करियर के बारे में, सारे करियर्स में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होती है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ चैलेंजेस होती है और हमको उन सब को फेस करना पड़ता है. सो व्हाट वी डू,
We think that we are choosing a better option, but it's not that way. So poet कह रहा है कि हम सोचते हैं कि हम एक अच्छा सा ऑप्शन चूज़ करें, पर एक्चुअली जो हमारे दिल में है, जो हम करना चाहते हैं, हम उसी करियर को पकड़ते हैं, माने उसी रोड को हम लोग पकड़ कर आगे बढ़ते हैं। और उस रोड में हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं उस रोड के, और इक्वली बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे क्लोज डोर्स हम लोग को मिलते हैं, जो हम लोग अपने मेहनत से उनको खोलते हैं, और फिर धीरे धीरे वो डोर्स हमारे लिए ओपन हो जाते हैं, और हम लोग अपने सक्सेस की तरफ या हमारे करियर के आगे जो भी स्टेप्स हैं उसके लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। सो नाउ लेट्स गो टू थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So what the poet says over here? The poet says that both the paths were similar that morning. Both had leaves on them, and no one had stepped on them, as they were still green in color. He decided that day he would take one path and keep the other path for another day. Although he knew that one way leads on to another way, he knew that he could not go back on the choice that he had made. तो उन्होंने एक पाथ पकड़ लिया और उस पर आगे चले गए। उन्होंने सोचा शायद मैं वापस आऊँगा दूसरे पाथ पे चलने के लिए, पर उनके मन में एकदम फर्म था उनका जो डिसीजन। उन्होंने सोचा नहीं, आई एम गोइंग टू गो ऑन दिस पाथ ओनली। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी हम लोग को एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो आप दोनों तो नहीं बन सकते ना, तो यू हैव टू चूज़ वन। सपोज यू वांट टू बी अ पोएट, और यू वांट टू बी अ प्रोफेसर, और यू वांट टू बी अ लॉयर। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं दुनिया में, तो हमको एक उसमें से एक हम लोग चूज़ कर सकते हैं। और उस एक को चूज़ करने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड विद दैट ऑप्शन, एंड वी शुड नेवर गेट अ चांस टू कम बैक and take the other option that we had left earlier. एक बार सोच लिया है ना कि ये हम लोग को ये करियर बनाना है, तो उस करियर पर हमको आगे बढ़ जाना है। हम लोग ये नहीं सोच सकते अरे इसमें मेरे को ठीक से फा नहीं रहा, चलो अब मैं कुछ और करूँ, कुछ और सोचूँ। पहले से ही आपके मन में आपको डिसाइड कर लेना है कि what I want to do in life, what I want to become in life. It should be a proper career, okay? Now let's go to stanza 4. क्या कहते हैं पोएट स्टैंजा 4 में? I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. So poet क्या कहते हैं last stanza? What he says is a very interesting stanza. He says that in the future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him, and he travelled on the road which had been travelled upon by lesser number of people. हम लोग का लेसन का नाम देखो, पोएम का नाम क्या है? द रोड नॉट टेकन। इसका मतलब ऐसा करियर उन्होंने चूज़ किया जो बहुत कम लोग चूज़ करते हैं, या बहुत ही रेयर, वो कोई भी उसको चूज़ करे वो बहुत रेयर है। सो दैट डिसीजन ऑफ हिज decided his future. Similarly, in future, when you also will grow up, okay, now you're 9th standard, slowly 3 or 4 years, you will be able to decide what you have to take up. Then you will say that once upon a time, when you were young, you had two options. तो बहुत सालों के बाद आप लोग ने करियर चूज़ कर लिया, फिर आपको काफ़ी साल हो गए, आप ओल्ड हो चुके हो, तो आप अपने बच्चों को बोल सकते हो कि ओके, आई हैड थॉट ऑफ अ करियर एंड आई टुक द रोड विच वॉज लेस ट्रैवल्ड, बट उस चॉइस से क्या फ़ायदा हुआ? The choice that you made you what you became of it. So this is a very strong message for all the students. तो ये क्या कहते हैं? पोएट ने क्या चॉइस ली? उन्होंने चॉइस ली कि उनको पोएट बनना है। अब पोएट कोई बनता है? आजकल के ज़माने में पोएट बनना माने इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू दैट स्ट्रीम and go on writing poems to be accepted by the society, to be accepted by the world, to be accepted outside. Okay, so it's a difficult choice the poet had made long back. और but today उसकी देखो, उसकी poems हम सब लोग पढ़ रहे हैं, हमारे books में हैं. Okay, poems we are able to read. He's become so famous, and you know already Robert Frost is a poet who writes more about nature. His poems are all concerned with
नेचर, विद द ब्यूटी ऑफ नेचर। और ज़्यादातर इसकी पोएम्स में हम लोग देखेंगे कि ऑलवेज द पर्सन होम ही इज़ टॉकिंग अबाउट, एनीबडी, बहुत ही काम, बहुत ही साइलेंट, बहुत ही लोनली, इस तरह की इसकी पोएम्स होती है और बहुत ब्यूटीफुल होती है उसकी पोएम्स। उनकी पोएम्स पढ़ते से ही हम लोग उनकी पोएम्स में चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, ऐसा एक दरवाज़ा खुलता है और हम लोग ऐसे ही रोड पर हम लोग को दिखाई पड़ने लगता है ऐसा रोड, और हम लोग को अपना करियर, 2 रोड्स दिखते हैं, कहाँ हम लोग को कौन सा करियर लेना है, दोनों सब कुछ दिखने लगता है। ऐसे ब्यूटिफुली हिज पोएम्स आर रिटन एंड वेरी क्वाइट उनका नेचर होता है। पोएम का नेचर एकदम, ज़्यादातर एक ही पर्सन होता है पोएम में और वो एक अकेला जा रहा होता है यूजुअली। ज़्यादातर ही इफ़ यू सी हिज पोएम्स दे आर ऑल कनेक्टेड विद द नेचर, और नेचर के थ्रू ही वो हम लोग को एक मैसेज देती है, ब्यूटिफुल मैसेज फॉर whoever is reading the poem. What is the message he is giving here? So this poem is a very strong message for all the students, as I told you, that you should be wise and be careful while making choices out of the options that you have in your life, because your future depends on the choice that you made today. So this is all about the poem, beautifully written by Robert Frost. Thank you one and all. I'll come back again in the next session. Bye bye.